Thank you, Comrade Anaga. It is always a pleasure to come to JNU and speak to JNU students. Let me speak about just one issue because it is important to sometimes refresh memories just so that the path forward can also be charted. तो मैं JNU कैंपस में आई थी 1997 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में माहौल था, JNU में जब आए तो बहुत अलग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अब ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि JNU बहुत अलग है। तो मैं जब आई तो JNU में कुछ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस ये सब चल रहे थे और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई थी। वहाँ यही ओपिनियन था कि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ होती है, उससे दूर रहना चाहिए, इसमें सब खराब लोग होते हैं, सबका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो यही सब सोच के मैं भी कैंपस में आई केम, बट इट वाज अ यूनिक ईयर बिकॉज दैट वाज द year when ABVP was in a majority in the JNU-SU. So that year, JNU-SU president was Comrade Battilal Berwa, a two-time Dalit president of the JNU-SU. So a very historic feat. But he had won by merely 4 votes. And the remaining JNU-SU 3 office bearers, majority except School of Social Sciences, majority everywhere was the ABVPs. So students in campus were complaining that some things have changed. There had recently been in 1997 an attempted rape case at Parthasarathy Rock. There was another attempt to rape case in Periyar Hostel, in which the culprit was caught red-handed. There was a human chain outside Periyar Hostel, but his exit and his escape was also facilitated by a group of students. There were loud cars that used to come into campus in full speed. So there were incidents of women students routinely complaining that from the Ganga Dhaba to this T-point stretch, if they were alone at night, there were attempts to drag them into cars. So there were various altercations around those cars. The dhabas used to go empty by evening in terms of the women students. जैसे दिल्ली में होता है कि दिल्ली में अंधेरा होने से सब औरतें घर में चली जाती हैं, बाहर अनसेफ है। सो व्हेन आई केम टू कैंपस मुझे लगा दिल्ली जैसा ही माहौल है, शाम को अंधेरा होता है, लड़कियां अपने हॉस्टल में चली जाती हैं। हॉस्टल नाइट के नाम पे सतलज हॉस्टल की नाइट में गंगा के सामने मुजरा ऑर्गेनाइज किया था। तो चूँकि मुजरा ऑर्गेनाइज किया तो गंगा में जितनी स्टूडेंट्स जा रही थी तो उस इंसिडेंट को लेके कंट्रोवर्सी थी। साबरमती हॉस्टल की विमेंस विंग और बॉयज़ विंग में विमेंस विंग के स्टूडेंट्स का कंटिन्यूस कंप्लेंट था कि हमको अंदर जाने में तरह तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट या कमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं। देयर वाज अ हंगर स्ट्राइक एंड इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ JNU स्टूडेंट्स दैट द president of the hostel was a woman who was elected by both wings combined on the mandate of making a safe hostel. But there was a pamphlet brought out against her saying that she is in an international trafficking ring and she is a prostitute. These direct words were used कि वो international prostitution का रैकेट चला रहे हैं और मेन पिम्प है। तो इस तरह के सीधे सीधे नाम लेके पर्चे कैंपस में, उस पर भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब मुझे मालूम नहीं अभी होली में चाट सम्मेलन होता है कि नहीं, अभी भी होता है। तो चाट सम्मेलन में बहुत कंट्रोवर्सी थी कि चाट सम्मेलन क्या एक ही टाइप का ह्यूमर होता है कि बस लड़कियों और औरतों का मजाक उड़ाओ और उनके बारे में मिसोजिनिस्टिक कविताएं सुनाओ और ये जो है ह्यूमर है। इज़ दैट द ओनली फॉर्म ऑफ ह्यूमरस? सो उसको भी लेके समस्या थी। होली हॉस्टल में साबरमती में ही हुआ था कि बॉयज़ विंग से गर्ल्स विंग में जाके एक लड़की की बॉडी को उसको काफ़ी बुरी तरह मोलेस्ट किया, क्योंकि और यही कह के कि भाई बुरा ना मानो, होली है, होली के दिन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, उसको लेके मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके बाद द फाइनल कल्मिनेटिंग पॉइंट वेयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ फर्स्ट प्रोटेस्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ JNU was that there was a rape of a minor girl who was being trafficked across states
and one of the stopovers was behind Teflas, and that the persons who were committing the act of rape were caught red-handed by JNU students, and there was a massive protest because initially we didn't know that she is a minor, she is extremely traumatized, she has undergone a complex experience, you know, very traumatizing and difficult experience through the entire process of trafficking. हम लोग उस ज़माने में मेंटल हेल्थ लेके भी हमारा उतना ही अवेयरनेस था, मूवमेंट वहीं तक था जो हम बोले कि मेंटली रिटार्डेड लड़की का रेप हुआ, दैट इज़ व्हाट वी कंक्लूडेड. बट इट टुक अस टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ. वो शी इज़ नॉट रिटार्डेड, शी इज़ अंडरगॉन एक्सट्रीम ट्रॉमा. एंड देयर वॉज अ कोइंसिडेंस दैट व्हेन दिस वॉज गोइंग ऑन, द स्टूडेंट्स ऑफ JNU के जो छात्र छात्राएँ हैं उसमें बहुत हलचल थी, बहुत डिस्कॉन्टेंट था और तरह तरह के डिबेट्स और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. तो पॉलिटिकली भी पूरा स्पेक्ट्रम था. तो एक तरफ उस टाइम तक आप देखेंगे 1990s के तो रिकॉर्ड भी आप गूगल करके देखेंगे तो पता चल जाएगा. तो ABAP वॉज वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं, रात को घूमती हैं, ड्रेस कोड होना चाहिए, कोड होनी चाहिए. सो उसकी एक लॉजिक होती है भाई. लॉजिक ये है कि भाई जो लड़कियों के साथ हो रहा है ज़रूर उन्होंने ऐसा कपड़ा पहना होगा, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, उन्होंने कुछ जो है ऐसे हरकत की होगी जो उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्हीं को अपने ऊपर पाबंदी रखनी चाहिए. सो व्हाट इज़ कॉल्ड विक्टिम ब्लेमिंग इन सम वे और द अदर. तो एक पॉलिटिकल लाइन बहुत क्लियर थी कि भाई ड्रेस कोड होना चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट देश भर में चला. उस टाइम NDA 1 की सरकार थी. दूसरा NSY का था, तो उनका था कि जूडो कराटे क्लासेस, सेल्फ डिफेंस क्लासेस होनी चाहिए. अब मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स और फिटनेस और कराटे भी सीखा है मैंने, तो उससे भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत सीखा है, ऐसे आता नहीं. तो मगर ये आइडिया कि मतलब अभी आप देख लीजिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है, तो उसमें क्या एथलीट्स का सोल्यूशन ये है कि भाई वो ब्रिजभूषण सिंह जी को उठा के पटक दें या कराटे की एक चॉप मारें और उससे सेक्सुअल हैरेसमेंट की समस्या का समाधान हो. तो कहीं ना कहीं उसमें भी ब्लेमिंग विक्टिम की होती है, या जिसने जो रिसीविंग एंड पे है उसी के ऊपर ब्लेम हुआ कि भाई आप इतने फिट नहीं थे, जो आप किसी का कुछ रेजिस्ट नहीं कर पाए, आपको फिट होना चाहिए तब आप अपना ध्यान रख लोगे. तो ये भी था. तीसरी तरफ पब्लिक कोर्ट्स भी लगे. होली वाले केस पे पब्लिक कोर्ट लगा, बहुत डिस्कॉन्टेंट था ना. ऐसे जितनी भीड़ है इससे 4 गुना भीड़, जबकि उस टाइम पे JNU स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 5-6 हज़ार होती थी. तो बहुत स्टूडेंट्स जमा होके वो पब्लिक कोर्ट लगाया गया. पूछा गया क्या हुआ, तो स्टूडेंट ने ये बताया, दूसरे स्टूडेंट ने अपना डिफेंस दिया, फिर बाकी लोगों ने आके उस पर अपना ओपिनियन दिया. तो वो बेसिकली ह्यूमिलिएट और शेम करने वाला और पब्लिक लिंचिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जाने वाला मामला हो गया, जिसमें बहुत डिस्प्रपोर्शनेट हो गया. और उसके अगले दिन से ही बैकलैश उल्टा चलने लगा कि ये ना लड़के के साथ जितना उसने किया उससे ज़्यादा जो है उसके साथ अति कर दिया. ये बैकलैश चला. एंड बाय द वे दोस टाइम मेल स्टूडेंट्स वर अ मेजॉरिटी इन द कैंपस. तो ऐसे जैसे आज जो है लड़कियों का नंबर काफ़ी है, उतना नहीं था हमारे कैंपस में. तो वो भी था. पब्लिक जो विजिलेंटिज्म होती है कि कौन मेरी दोस्त को छेड़ेगा, मतलब वो विजिलेंटिज्म भी बहुत हुआ कैंपस में, कम नहीं हुआ. तो जो गंगा ढाबा पे से लेके टिप्स पॉइंट तक रात को गाड़ियाँ आती थी, तो अब सिक्योरिटी की ये सब मेजर्स, तो उन सब स्ट्रगल्स और डिस्कशन से कुछ हुआ. मगर जो ऐसे आगे आई फुल स्पीड और फुल स्पीड खींचते हुए ले गई, कोई जो है गिर जा रहा है. मतलब वो जो है कि JNU इज ओपन 24/7, मतलब कोई भी आए और कोई भी जाए, तो उस पे गाड़ी को आग लगाने की, ये सारी इस टाइप की भी चीज़ें हुई. मगर इस सब के बीच में 1997 में ही विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, जिसने ये बात कही कि सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी भी वर्क प्लेस पे हो रहा है तो उसके प्रिवेंशन, उसके प्रोहिबिशन
और उस पे एक्शन, मतलब कोई कंप्लेंट कर रहा है तो रिड्रेसल क्या होगा, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है। जैसे देश में अगर कुछ हो रहा है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। अब ये बात तो हमारे वाइस चांसलर उस टाइम के मानते ही नहीं थे। बोले उसने उसको रेप किया, तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम लोग मुझसे क्यों डिमांड कर रहे हो? मैं क्या करूं? दो लोगों ने कुछ किया आपस में, मतलब व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मी? तो ये बात को ही यूनिवर्सिटी कैंपस में समझाने में और समझने में बहुत डिबेट चला। उसके बाद भी लेफ्ट के स्पेक्ट्रम के अंदर के डिबेट्स थे। लोग बोले अगर कमिटी बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी, इफ देयर आर विमेन एनीवेयर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही रहा होगा, इट्स अ प्रिजम्पशन इन द गाइडलाइन। बट गाइडलाइन होती है, डायरेक्टिव तो होता नहीं। तो गाइडलाइन में था कि कमिटी बनाओ जिसमें 50% से ज़्यादा विमेन हो, थर्ड पार्टी कोई एनजीओ, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कोई ना हो, थर्ड पार्टी हो, बाहर से कोई हो, जो वहाँ के वर्क प्लेस की इक्वेशंस में फंसे नहीं। और उसके अलावा उसमें बेसिकली उसका काम सिर्फ रिड्रेसल नहीं होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि वो प्रिवेंशन करे, यानी साल भर सेंसिटाइजेशन का कोशिश जो है चलाए। तो ये सब चीज़ों में जो ये कमेटी ऐसी बन सकती है, स्टैंडिंग हमेशा रहे, मतलब हमेशा एक कमेटी रहे, परमानेंट कमेटी रहे। द फर्स्ट डिबेट इन कैंपस बिकेम द वाइस चांसलर। अब जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, क्या करें, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। फर्स्ट डिबेट बिकेम, अगर वाइस चांसलर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, वाइस चांसलर इज सो अपसेट कि तुम लोग हर जगह स्पीच दे रहे हो कि अगर वाइस चांसलर ने सेक्सुअल, मैंने किया ही नहीं, मुझे क्यों तुम लोग बदनाम कर रहे हो? बट इट वॉज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट इन अ वर्क प्लेस, क्योंकि वर्क प्लेस और नॉन वर्क प्लेस में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसमें तो एक फ़र्क होता है ना, कि वर्क प्लेस और नॉन वर्क प्लेस में तमाम दुनिया भर के जो कॉम्प्लिकेशन है ऐसे ही होते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, मगर वर्क प्लेस में एडिशनल कॉम्प्लिकेशन है दैट इज हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर योर वर्क। जो अभी ये एथलीट्स बोल रही हैं, इट हैज़ इम्प्लीकेशन कि वो रेसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो इट हैज़ इम्प्लीकेशन अगर स्टूडेंट है और फैकल्टी से कुछ हो रहा है कि उनके ग्रेड्स क्या आएंगे, उनकी क्या होगी पीएचडी थीसिस का या डिसर्टेशन का क्या होगा। स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट हो रहा है, तो ये सब डिबेट हुआ उस टाइम पे कि पीयर ग्रुप में होस्टाइल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, जिससे कोई अपना काम ना कर पाए, पढ़ाई ना कर पाए, सेफ सिक्योर पीसफुल एनवायरनमेंट में भी डिग्निटी ना रह पाए, हमेशा चिंता में रहे कि क्लास में जाऊंगी, ये होगा वो होगा। अब इस सब डिबेट से सबसे पहला डिबेट स्टूडेंट्स में जो चला, जिनमें कंसेंसस था कि कमेटी बननी चाहिए और उसका नाम जीएस कैश होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो भी 8 मार्च को एक कन्वेंशन हुआ था ऑल इंडिया, उससे पास हुआ था। तो 1998, तो 97 to 98 ये डिबेट उस टाइम फैकल्टी में एक ग्रुप था, फेमिनिस्ट कलेक्टिव, सब मिला जुला के सबका उससे ये निकला कई महीनों की बहस के बाद और कैंपस भर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, क्योंकि पब्लिक कोर्ट्स के बाद सबसे नाराज हमसे वो कंप्लेनेंसी थी। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्लेनेंट्स चाहते थे, उनको नहीं चाहिए था कि खड़े होकर आप पब्लिक के सामने पूरा अकाउंट दें और उसके बारे में अब डिबेट चले कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। उनको नहीं चाहिए था कि उनके नाम पे विजिलेंटिज्म में ऐसी कोई चीज हो जिसके ऊपर जब पनिशमेंट हो तो लोग बोले भाई हम तो तुम्हारे लिए कर रहे थे और पनिशमेंट हमारे ऊपर हो गई। उनको नहीं चाहिए था कि मेरे नाम पे मत करो, मेरे नाम पे किसी को जाके मारो पीटो, गाड़ी जलाओ, कुछ और करो, मत करो। तो देयर वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटेंस प्रोसेस जिससे स्टूडेंट्स ने ये कमेटी के बारे में सोचा एंड वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस वाज कि इलेक्टेड होनी चाहिए और जेएनयू की पूरी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। प्लीज थिंक अबाउट इट, दोज हु स्टडी अ लॉट ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स,
you will understand that to get such a committee which is entirely elected by the community, but its decisions are institutionally binding on the administration. I don't know whether any such institution exists in any of the universities that you have come from. But the first thing was trustworthy होनी चाहिए. तो ये भी डिबेट चला कि भाई अगर पॉलिटिकल इलेक्शन ही होगा तो ट्रस्टवर्दी कैसे होगा, इस संगठन का कोई जीता उसका जीता तो कैसे ट्रस्ट करेंगे. तो हुआ कि इंस्टीट्यूशन में मेन चीज होनी चाहिए कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. कैसे इंक्वायरी होती है, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, क्विड प्रो को सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, दैट मीन्स अ फेवर फॉर अ फेवर, या होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, क्या सवाल पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते. सो द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, आई कैन से that it is so amazing when I think about it. The rules and procedures were drafted and they were circulated. Of course, huge number of faculty members were involved in that effort, but they were circulated among students. Every organization had their take on it. There was UGVM, and finally rules and procedures were passed from a students university general body meeting as well. कि भाई हम students community में ये पास है. So all the questions कि कैसे होना चाहिए, क्या होगा, क्या पूछेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है. All the boys were asking कि अगर हमने किसी को प्रपोज किया और वो बुरा मान गए तो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा. तो we were all in a fix. तो we figured out the answer कि नहीं, अगर कोई बुरा मान जाए और ना करे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा. मतलब फर्स्ट टाइम किसी को कुछ एडवांस कर रहे हो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, मगर अगर कोई ना करने के बाद फिर से प्रपोजल करोगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट. मतलब ना करने के बाद छोड़ दो. तो ये सब पब्लिक डिबेट हुआ कि भाई क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कैसे करना है, क्या नहीं है. सो वन ऑफ द इनोवेशंस वाज इलेक्टेड कमिटी. And I can tell you that the first 2 elections of the GS Cash that were held on campus, तो ये था कि we were apprehensive, there were lots of debates. अच्छा लोग पब्लिकली आके यूजीवीएम में कुछ बोलते हैं, जो नहीं आते वो साइलेंट मेजॉरिटी का क्या ओपिनियन है वो पता चल गया इलेक्शन में. सो द डिसीजन वाज कि वन रिप्रेजेंटेटिव विल ऑलवेज बी अ वुमन, नो मैटर व्हाट हर पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ रैंक वोटिंग के बाद. तो पहले 2 इलेक्शन में जो जीते वो लड़के ही जीते. तो एक लड़का होता था, मगर जो भी फर्स्ट लड़की है वो भी जीएस कैश में आई. और लड़कों का 2 साल जो इलेक्शन हुआ, एक बार जो है उनका वो था डिबेट था कि इलेक्ट मी टू जीएस कैश. मतलब कुछ कैंपेन इस टाइप की थी कि हम इंश्योर करेंगे कि जीएस कैश काम ना कर पाए. वो जीत गए, वोट दिया लोगों ने कि नहीं काम कर पाए. सेकेंड टाइम जो है मैं भी थी उसमें यूनियन में, तो नो टू वॉर, नो टू टेरर, 9/11 पूरा उस टाइम वो चल रहा था. और वो भी साल था जिस साल जो है हम लोगों ने मोदी जी को जाना और मोदी जी ने जेएनयू को जाना. तो वो इंट्रोडक्शन का भी साल था. तो उसमें जो है वो हुआ ये कि एक बोल रहा था वोट अगेंस्ट टेरर, द टेरर ऑफ जीएस कैश, वो भी जीत गया इलेक्शन. तो 2 साल डेमोक्रेटिक, आप समझ रहे, डेमोक्रेटिक डिबेट. देयर वाज एप्रीहेंशन कि कैसे कमिटी होगी, क्या होगी. और 2 साल चूंकि द अदर डिबेट वाज कि अगर कमिटी हो, इलेक्टेड हो, तो क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. And it's a debate. You should get into this debate. What is the difference between secrecy and confidentiality? Confidentiality doesn't mean that everything has to be secret. So annual GBM or report has to be presented for all the constituents of the university community as the report of that tenure of the GS Cash, saying so many cases. It's not breaching anybody's confidentiality. Student versus student, male versus male, female versus male, male versus female, faculty versus student, student versus karmachari, all kinds of. Just this much. How much time did it take? What is the summary of the allegation?
वॉज इट स्टॉकिंग, वॉज इट मैसेज, लेटर, पोस्टल? हमारे टाइम तो पोस्ट कार्ड और लेटर होता था ना, उसी के केसेस होते थे। लेटर में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजना पड़ता था इंक्वायरी करने के लिए कि कहाँ से आए, जैसे आपका आईपी एड्रेस का मामला हो गया। तो वो किसका है, कितना टाइम लगा इंक्वायरी में, फाइंडिंग क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है या नहीं है। कुछ कुछ केसेस में होता था सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, मिस्टेकन भी होता था। एक आध बार ऑफ हैंड बहुत से केसेस में फॉल्स कंप्लेंट्स भी आई जो मोटिवेटेड थी, पर उसका मोटिवेशन बाद में देखा जाएगा, अलग इंक्वायरी होगी। मगर ओवरवेलमिंगली व्हाट इज द फाइंडिंग और पनिशमेंट क्या रिकमेंड किया। देयर इज नो डिटेल अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, हु आर, वेयर आर दे रिसाइडिंग, नो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बट दैट डिडंट मीन देयर वाज सीक्रेसी। दैट मीन एट द एंड ऑफ द ईयर वी न्यू कि ये लोग हैं, इतने केसेस आए, इतनी कंप्लेंट्स आई, इतने दिन में इंक्वायरी शुरू हुई। तो डिबेट ये हुआ कि पहले 2-3 साल जब लोगों ने काम किया तो उसमें ये हो गया कि कोई तो ऑफिस नहीं था जीएस कैश का, कोई स्टाफ नहीं था, और रिपोर्ट्स तो लंबी लंबी लीगल रिपोर्ट्स होती हैं, पूरी टेस्टिमनी रिकॉर्ड होगी, ट्रांसक्राइब होगी, उसको टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जो कमिटी में गया उसने कहा इतना काम है, फैकल्टी में भी यही वो हुआ। तो जो उतना काम करने के लिए तैयार है 24/7 हर वक्त, मतलब उसका इंक्वायरी चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो, मतलब हर वक्त समन भेज रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, समन नहीं ले रहे हैं और भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे की समन ले लो, रिसीव करो, ये वो, दुनिया भर की चीज। कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है। सो ऑफिस स्टाफ मिले, कमरा मिले, जो जो समझ में आया वैसे डिबेट्स और वैसी स्ट्रगल्स हमारे टाइम पे हुई। तो इनिशियली नॉमिनेटेड कमेटी 8 मार्च 1999 को बनी। जेएनयू कम्युनिटी ने उसको रिजेक्ट किया, बोला हमको इलेक्टेड चाहिए और जो अकाउंटेबल हो साल के एंड में बता दे, हिसाब किताब दे कि किया क्या, कितनी कंप्लेंट्स आई और क्या किया। अब इस सब के साथ साथ पावर और हायरार्की के क्वेश्चंस आए, और मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, जितनी बार फर्स्ट फैकल्टी, फ्यू फैकल्टीज के अगेंस्ट केस हुआ और कॉक्सैट ने इंक्वायर किया, उतनी बार जेएनयू में डिसीजन मेकिंग फोरम्स में डिसीजन हुआ कि इसके रूल्स को रिव्यू करो, रिवाइज करो, रूल्स ठीक नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं टीचर की इंक्वायरी पे, चैलेंजेस हुए, लीगल चैलेंजेस, बट ऑल ऑफ देम वर विथस्टूड। तो उस तरह के भी बैकलैश हुआ। पावर हायरार्की क्या होती है वो तो आप वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में समझ रहे हैं ना कि पावर और हायरार्की क्या होती है जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ कंबाइंड हो। और नॉमिनेटेड अगर कमेटी होगी तो जैसे विनेश फोगट कह रहे हैं कि लीक कर रहे हैं, वो हमारी बात ठीक से सुन नहीं रहे। बात इसकी नहीं है कि आप कितने अच्छे एथलीट हैं, बात इसकी है कि आप एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के रूल्स, प्रोसीजर्स, उसका तौर तरीके जानते हैं कि नहीं, और आप खुद पावर के प्रेशर में आएंगे कि नहीं। तो जैसे उसमें चल रही है कहानी कि ये तो हरियाणा की रेसलर्स यूपी वाले के खिलाफ यूनाइट हो गई हैं, वैसे जेएनयू के केसेस में ऐसी कहानियां चलती। नॉट जस्ट कहानी, दे वर रियल कॉन्ट्रडिक्शंस। If the accused is Dalit, if the accused is upper caste, if the accused is North, South, if the accused is LGBTQI, if the complainant is similarly Adivasi, Muslim, if the accused is a Muslim, there were different dynamics of all those social issues coming into the complaints. But it was the rules and procedures that saved the day. So I don't want to tell you a long story about what it is. I want to quickly jump to the next big intervention that happened 2006 के इर्द गिर्द, जिसके बाद लिंडो कमेटी से what श्वेता was referring to कि JNU-SU इलेक्शन कई सालों के लिए फिर रुक गया। तो 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनैक्ट हुआ कंट्री में, और JNU में इमीडिएट डिबेट हुआ that what to do about intimate partner violence. Let's not shy away from that reality. है ना, अभी लिव इन रिलेशनशिप्स में वायलेंस नेशनल न्यूज़ में है, तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का क्या करें, और उसको भी क्या हम जीएस कैश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पर तब तक जीएस कैश के वाइंड अप होने के ही
वो शुरू हो गए। मगर इसके अलावा नेक्स्ट पड़ा हुआ है 2012 में एंटी गैंग रेप मूवमेंट हुआ। जो जेएनयू का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने शुरू किया। इट सीम्ड लाइक अ डेटिंग कपल who were returning from the movies at night and then they faced this incredible amount of violence. So there was an immediate solidarity from JNU students कि ये तो मुनीरका का मामला है. You know that entire movement was started. The focus of students and youth remained on the state. क्यों रायसीना हिल्स जा रहे थे? क्यों जा रहे थे ऐसी जगह जहां सरकार से जवाबदेही मांगना? और फिर हम वही देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने उसके साथ कुछ किया, पुलिस ने पकड़ लिया, हमारे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सेम थिंग, सेम डिबेट ऑल ओवर अगेन कि भाई ये क्यों कर रहे हो, हमने क्या गलत किया है? द कमिश्नर ऑफ पुलिस गेव अ लॉन्ग इंटरव्यू दैट व्हाट इज माय फॉल्ट, माय पुलिस हैज अरेस्टेड पीपल. And the entire demand from JNU and student youth, etc., that there should be some prevention. These things should not happen. Think in terms of prevention. तो 9/11 से एंटी टेरर लॉ कैसे लॉज इनेक्ट हो रहे हैं? उनका क्या फोकस है कि टेररिस्ट एक्ट होने से पहले हम टेररिस्ट को पकड़ लें, बाद में नहीं ना. वहाँ पे प्रिवेंशन सबको समझ में आता है. और जब जेंडर और सेक्सुअल वायलेंस पे लोग बोलते हैं प्रिवेंशन, तो स्टेट बोलता है कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, भाई क्राइम के बाद ही होगा ना. तो दैट इज व्हाट हैपेंड. द एंटायर फोकस ऑफ स्टूडेंट यूथ वाज ऑन द स्टेट. इट इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन द मी टू मूवमेंट अनफोल्डेड, particularly in India, which was more centered on campus, it was not initiated in JNU. Because in JNU the story of the GS Cash was far different. The experience was a positive experience. But basically what happened was that it reflected a disenchantment from the state. क्योंकि कानून तो पास हुए हैं मगर कोई न्यूज में फर्क पड़ रहा है? जैसे कांड हो रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ रहा है? कोई ब्रूटैलिटी कम हो गई? कोई इंसिडेंट्स कम हो गए? तो ये कि सिर्फ कानून पास करने से तो नहीं होगा ना. So there was a huge disenchantment, and we are living in such times politically that there is an commentators, serious scholars, two different people are observing that there is an unprecedented crisis of the legitimacy of public institutions. You name it, there is a crisis of legitimacy. कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मिलेगा कि नहीं पता नहीं. मीडिया ठीक से रिपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं, लगता तो नहीं है. You name the public institution, including universities. You name it, and there is a crisis of legitimacy. This crisis of legitimacy, some people say, is a result of neoliberal developments, which is accompanied by unprecedented inequality. सारे इंस्टीट्यूशंस में कॉर्पोरेट इंटरवेंशंस ऐसे हुए हैं जो इनविजिबल हो गए, दिखते नहीं मगर अन्याय हो रहा है और अन्याय बढ़ रहा है. तो अगर संस्थानों पे भरोसा नहीं रहेगा तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस लोग देखेंगे. तो मीटू में भी हुआ कि नेम एंड शेम ही करो, कुछ नहीं होगा तो. बट ऑन द अदर हैंड, आई एम आस्किंग एंड अपीलिंग टू यू एज स्टूडेंट्स. Because you are JNU students, I have shared briefly what has happened. In Me Too, most of the accusations came within the left and the progressive circles. The right wing was laughing. My sense is it is because the accusations came from women within the left and progressive circles who had a sense of dignity and who had a sense of affront to dignity, who recognized sexual harassment and objected to it. So I think it's the women and their politics that made a difference, why there were so many exposes. But I am asking you that in these times there are two simple options. One is the right wing option, which says कि मीडिया बर्बाद हो रही है. भाई पहले भी तो बायस थी, अब पावर गेम है, अब हमारे हाथ में पावर है तो हम अपने हाथ में करेंगे ना.
सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, उस पर कुछ समस्या दिख रही है लोगों को, कोई बात नहीं, पहले भी तो बायस रहती थी ना, अब हमारे हाथ में पावर है, हम अपने तरीके से चलाएंगे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सिनिसिज्म रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड द राइट विंग रिस्पॉन्सेस की जिसकी लाठी उसकी भैंस. इंस्टीट्यूशन हमारे हाथ में है, इट्स अ पावर गेम, जिसके हाथ में उसके हिसाब से चलेंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ सिनिसिज्म. अब इस मीडिया को आज मुझे कोई कहेगा कि अर्नब गोस्वामी की राइट्स डिफेंड करो, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दुनिया भर की चीज़ें बहुत मुश्किल है, तो कर सकते हैं कहीं होगा नहीं. तो अब वो भी है कि इंस्टीट्यूशंस में अब कौन है उस पर डिपेंड कर जा रहा है. आजकल तो हम अपने बारे में ओपिनियन ही ऐसे बनाते हैं ना कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, अच्छा तुम हमारे दोस्त हो सकते हो. तो अब तो ओपिनियन से हम पहचानते हैं ना एक दूसरे को. तो उसमें जो है देयर इज अ सिनिकल रिस्पॉन्स की छोड़ो सब बर्बाद है. एंड आई थिंक देयर इज अ टाइम नॉट फॉर नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट. I have not recounted the history to you because we were far less alive on the social justice issue than you are now. There is a different democratic upsurge that is happening in campuses, a different kind of consciousness, nascent intellectual contributions which are serious scholarly contributions are being made by your generation and your immediate seniors, which was not the case in our generation. You are living under NDA 2, which is a totally different from NDA 1, which was a coalition government. So no matter what we faced, your times are different. But you also have a choice, and I think, and my appeal to you would be to reimagine how to rebuild institutions, because institutions should not depend on individuals. They should have a life of their own. And where did the question of having sturdy institutions come up? It came up on the entire question of the innovation of democracy, the collapse of monarchy, the collapse of religion as the source of law and authority and justice, that new institutions which can work on new notions of law and justice are what will hold the society together. They will hold the polity together. They are the cornerstones of democracy. So of course there is a question about democracy, there is a resignation about authoritarianism, there is cynicism about it, but your generation has to imagine, and I would appeal to you, rebuild the GS Cash. You have taken a principled position that you will not compromise on the elected nature of the committee, so please don't compromise on it, but please fight for it and get it back. Because students who are facing problems, the individuals who are facing it, they continue to remain vulnerable and in pain.